Everyone. This is Dhruv Dave. I'm from Parul University. As you know, Parul University is very much aggressive during this COVID-19 period, and always Parul University thinks for the people who are associated with Parul University directly or indirectly, and also they are very much they are also every time Parul University is thinking about how we can give better to the society. And as you know, during this pandemic situation, it is necessary for all of you to get the good guidance and proper guidance, or in fact, I can say the fact guidance about the COVID 19 and corona pandemic. As a part of this time we are organizing one webinar for the society, not only for the Parul University students or the stakeholders of Parul University students, and we are doing it for the society. And we have luckily we got the very eminent personality, Dr. Vijay Joshi. He is localite to Vapi. Good morning, sir. Good morning to you. uh, Dr. Vijay Joshi is in fact I can tell you, is a young old person, as he is a senior citizen, but he is very enthusiastic. And when I meet Dr. Joshi sir, he himself told me that I want to do something for the society. Can you be a mediator of this thing? And we thought, no, sir, we are fine with that, absolutely. And also with the guidance of Joshi sir, we can do something which is beneficial to the society and to the people. He is a doctor. He is doing a practice in Vapi. He has his own clinic, Dr. Joshi's clinic. He has more than 50 years of clinical experience. And within this 50 years of experience, he has visited 46 countries for academic and conference purposes. He has 40 years of hospital experience, clinical and administrative, including 6 years of civil surgeon. 30 years he has worked for exclusive diabetic dedicatedly. More than a dozen degree he is having. He is holding a more than a dozen degrees for the thing. He is holding a 4 gold medal received in a clinical and academic career. He is running a free clinic on all Thursday for needy and poor patients. First of all, Dr. Joshi, on behalf of all Parul University, team Parul University, I would like to welcome you. It's a warm welcome to you, sir, and it will be an honor to have you like a eminent personality on the board. And the most important thing is that he has done some specific course on COVID-19, and he is having a certificate for the COVID-19 course as well. So I would like to request you, sir, just put some knowledge on COVID-19, because all the universe, I can say, all the people, they are suffering from this pandemic, and due to some lack of knowledge, the one they are not able to how corona is affecting to the people. And I can say it's a huge thing when one is getting positive, one is get diagnosed as positive from corona virus. There only that person is not suffering, but the whole family and whole society is suffering from that coronavirus. So I would like to again I would like to welcome you on this thing, sir.
and we would like to request you to put some knowledge and share some knowledge on COVID-19, sir. Again, it's a warm welcome to you, sir, Thank you. and it's a great honor to you to having a board, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Dave. Good morning, everybody. The students of Parul University and anyone who has joined me. First of all, I would express my sincere thanks and gratitude to the Parul University administration, and my equally sincere thanks and gratitude to Mr. Dave, who has arranged this program so that we can share my knowledge with you and discuss it out and see what we can do about it. There are always, in any game, any talk, there are always ground rules. So first of all, I'll switch over to our national language, Hindi. मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा. मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आज की हमारी 1-1.5 घंटे की जो बात है उसमें there is no big technicalities, there are no tongue twisting names, there are no jaw breaking phrases. मैं आप लोगों के साथ, मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, स्ट्रॉन्ग एंड यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उसके साथ मैं कुछ शेयर करने के लिए आज बैठा हूँ. मैं इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लाता हूँ. आज हम 1 घंटे तो हम उठने के टाइम पे कुछ, यही मेरा इरादा है. देखिए, ये मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं 1-1.5 घंटा आपको लेक्चर दूं, आप मुझे सुने ना सुने, आप तक बात पहुंचे ना पहुंचे, और 1-1.5 घंटा के बाद जब सब खत्म हो जाए तब आप अपना जेब या पर्स में से एस्पिरिन निकाल के खाएं कि अरे सर दुख गया चलो. नहीं, ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे. मैं आज आपसे ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा, आपको इन्वॉल्व करके. आई वॉन्ट योर कोऑपरेशन. मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम मिल के कुछ काम करने की बात करेंगे. नो टेक्निकल जितनी वैज्ञानिक बातें ज़रूरी है मैं ले आऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं. बहुत सी टेक्निकल बातें होती. देखिए, ये कोरोना का जो विषय है उसको हम कोरोना बोलते हैं, जिसको असल में उसका नाम कोरोना नहीं है, बट अलाउ मी टू यूज दिस नेम बिकॉज दिस नेम इज बीइंग यूज्ड इन ऑल मीडियाज, इन न्यूज़पेपर्स, इन टीवीज. उसका असल नाम तो कोविड नोवेल 19 है, आप सब जानते हैं. तो कोरोना की बात करने में मैं आपको ये कहना चाहता था कि हम कुछ शेयर करेंगे. आज का हमारा इरादा क्या है, हम यहाँ क्या बात करने के लिए बैठे हैं. मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ? जी नहीं. मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ? जी नहीं. मैं तो आपका सहकार, आपका कोऑपरेशन मांगने के लिए यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ. जी, तो क्या आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या बात करना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, मेरा इरादा ये है कि देखिए, हम आंकड़े जो गिनते हैं, सुनते हैं कि इतने नए पेशेंट आए, इतने पुराने पेशेंट ठीक होके गए, इतने आईसीयू में है, इतने डेथ हुए, इंडिया में इतना हुआ, महाराष्ट्र में इतना हुआ. फिगर्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पहली बात. दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा काम हम घर बैठ के कर सकते हैं. वी डू नॉट नीड. का इरादा ये है कि ऐसा कैसे और क्या करें सो दैट वी कैन रिड्यूस डाउन द नंबर ऑफ पेशेंट्स. संक्रमण के मरीज का जो आंकड़ा है उसको हम कैसे और कम कर सकें. और दूसरा कि हम ऐसा क्या कर सकें कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती ले जाना पड़े, नर्सिंग होम में उसको दाखिल ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत महंगा और मुश्किल काम है. उसको हम घर बैठ के कैसे करें, वो हम आज के, ये हमारा आज का विषय है. इसमें कोई बड़ी टेक्निकल बातें मैं नहीं ले आऊँगा, सब प्रैक्टिकल बातों को मैं लेके चलूँगा. हाँ, ये बात अलग है कि आई हैव टू स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर से लेकर आई विल ड्राइव यू आउट अप टू द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब हम यहाँ है. से ये निकला हुआ वायरस जिसको हम अभी कोरोना कह के बुलाते हैं. अलाउ मी टू यूज द सेम नेम. उसका टेक्निकल नाम कोविड. इस प्रकार का वायरस है
जो अपने दूसरे साथियों से मिलता जुलता है, जैसे सार्स है, जैसे मर्स है, जैसे कॉक्साकी बी, ये एक वायरस। अगर आप उसका स्वरूप देखेंगे ना तो कोरोना एक कोरोनेशन के स्वरूप से आपको दिखेगा। कोरोनेशन मतलब ताजपोशी, जैसे कोई राजा होता है या कोई रानी होती है, उसके सर पे हम लोग ताज पहनाते हैं, ताजपोशी हम बोलते हैं ना, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड कोई भी हो, कोई भी होता है। करीब करीब उसी तरीके का स्वरूप कोरोना का है, तो उसको हम नाम दिया गया कोरोना। थोड़ा सा मुझे ये बताना पड़ेगा, उसके स्पाइक्स जो हैं, दो प्रकार के स्पाइक हैं, एक बाहर का प्रोटीन कवर है और उसके अंदर आरएनए है। वो इसीलिए कि इसका सीधा प्रभाव हमारे एक्शन पे पड़ेगा। वो जो बड़ा स्पाइक्स हम देखते हैं, दैट एंकर्स इटसेल्फ टू आवर सेल्स, हमारे शरीर में रिसेप्टर्स कुछ होते हैं, भगवान ने ACE2 नाम के रिसेप्टर्स रखे हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के काम हमारे आते हैं। वहाँ वो बैठता है, दैट इज एंकरिंग। बाजू में छोटा सा एक स्पाइक है, दैट इज अगेन ए प्रोटीन दैट पेनिट्रेट्स द सेल। उसका जो खुद का आउटर कवर है विच इज लिपिड इन नेचर, तो जो स्पाइक है वो ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर होता है। तो दिस कैन बी डिजोल्व बाय सोप एंड वाटर। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ जाएगी, इसीलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अंदर जो आरएनए है, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए है वो इट्स नॉन लिविंग थिंग, इट नीड्स अ होस्ट। जब तक वो अपने होस्ट तक नहीं जाएगा, इट्स एज डेड एज एनी डेड थिंग। मुझे आपको कुछ इससे पहले बातें देखिए, मैं जो आपको कहने जा रहा हूं ना, वो आपको डराने घबराने के लिए नहीं कहने जा रहा हूं। लेकिन अगर हम डरेंगे घबराएंगे तो जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे तो बचने के लिए खुलेगा कि अभी तक हमने कोई ऐसा मेडिसिन नहीं, जो भी मेडिसिन है कि कोई भी नाम आप लीजिए, वो दूसरे वायरसेस में इसके प्रकार के दूसरे ग्रुप में, जैसे सार्स है, उसमें यूज किया गया है और इसमें यूज करने से अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन इसका डेडिकेटेड कोई मेडिसिन आज तक मैं नहीं मिला है, इंक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी। जहां तक वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन शॉर्ट टाइम, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा नॉलेज, वी मे गेट वैक्सीन इन इंडिया बाय मिड 2021 से, मई और जून 21 में हमें मिलेगा। साहब, ये वायरस जो आया है, ये मत समझिए कि ये दिवाली में चला जाए, बाद नहीं रहेगा। कोरोना इज गोइंग टू रिमेन विथ अस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। उसको हमें झेलना पड़ेगा और उसके साथ लड़ने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, डेडिकेटेडली सिर्फ वायरस का ही काम जो लोग ने किया है, वन ऑफ देम इज डॉक्टर लियोड, ही सिट्स इन हांगकांग। अगर मैं उसको कोट करूं, ऐसे बहुत से डॉक्टर साहब हैं, उनका यह कहना है कि देयर विल बी 2 waves ऑफ कोरोना वायरस, दिस विल लास्ट अप टू 2024 एंड दोनों वेव्स को टोटल करके उनका कहना है 40% of the population of the earth may get involved. 40% of the population, and population of earth is 778 crore. You can imagine what is the 40% of it. And out of that, those who go into ICCU and become serious, 5% will die. तो आप गिन लीजिए कि कितनी बड़ी थ्रेट है, और अभी तक हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसको आप क्या बोलेंगे? लड़ाई। दिस इज अ वॉर। लेकिन फर्क इतना है, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अगेंस्ट अनसीन एनिमी, ये अदृश्य दुश्मन है। अदृश्य वैसे भी है, देखिए दूसरे वायरसेस से ये थोड़ा सा और पतला है। तो दूसरे वायरसेस को देखने के लिए वी हैव टू मैग्नीफाई इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 100,000 टाइम्स। इसमें हमें 200,000 टाइम्स मैग्नीफाई करना होता है, तब जाके हम उसको देख पाते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट वायरस, इसलिए तो ये अदृश्य दुश्मन से हमारी लड़ाई है। हम जानते हैं कि इसकी हमारे पास कोई दवा नहीं है। हमने ये भी जाना है कि अगर सीरियस हो गया पेशेंट, हॉस्पिटल में गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, आईसीयू में गए, तो डेथ रेट इज़ वेरी हाई, और हमारे पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। तो यह लड़ाई
ये जो मैं कह रहा हूं द वॉर, ये क्या है? मैं समझता हूं ये लड़ाई जो है ना, इट्स बिगर देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई थिंक इट इज इवन बिगर देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। ये दिस इज अ वॉर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ। अगर 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन कोरोना, तो हम कहाँ जाएंगे? और साहब, ये लड़ने वाले सिपाही कौन है? हमारे जो लश्कर के जवान है, जो बॉर्डर पे जाके खड़े रहते हैं, AK-47 से लेके सब हथियारों से सज्ज हैं, वो नहीं। ये लड़ाई लड़ने वाले कौन लोग हैं? पर्सन लाइक मी, जो सफेद कोट पहने हुए है, एप्रन, हमारे नर्सिस, हमारे कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी भी हैं, इवन एन एम्बुलेंस ड्राइवर। ये सब लोग हैं जो ये लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, अपनी जान को दांव पे लगाएंगे। आप जानते हैं मोर देन 500 डॉक्टर्स हैव डाइड, मोर देन 514 इन दिस वॉर। कितने नर्सिस, कितने लोग इसमें मरे हैं, और तब जाके ये लड़ाई को अभी हम पूरा नहीं कर पाए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको हमें इस प्रकार से सीरियस से लेना होगा। खैर, आई विल रिवर्ट बैक टू जहां हम पहले थे कि ये वुहान से निकला, इंडिया में आया, इट वेंट टू मिडिल ईस्ट, इट वेंट टू स्कैंडिनेविया, इट वेंट टू यूरोप, इट वेंट टू USA एंड कनाडा, एंड देन इट केम टू इंडिया। ये मैं बताना चाहता हूं कि वायरसेस का एक स्वभाव, नेचर होता है, जो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, एनी वायरसेस। तो जो वुहान से निकला हुआ वायरस था और जो स्कैंडिनेविया में गया और बाद में जो मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया तक आया, इट हैज चेंज इट्स स्वरूप, इट्स नेचर। ये एक और समस्या हमारे लिए है। ये इसलिए कि ये वायरस एक प्रकार का हो तो कहीं एक जगह के उसको पकड़ के उसका कुछ इलाज, उसका कुछ ट्रीटमेंट हम ढूंढ सकें। मैं एग्जाम्पल देने के लिए कुछ और तरीके से कहूँगा, माफ़ करिएगा प्लीज़। जैसे ये वायरस है, हर दूसरे दिन अपना स्वरूप बदलता है। तो मान लीजिए साहब, आई वेरी सॉरी, मान लीजिए एक दिन वो दिखेगा अमिताभ बच्चन, दूसरे दिन वो दिखेगा ऋतिक रोशन, तीसरे दिन सलमान खान जैसा दिखेगा, तो आप उसको कैसे पकड़ पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पकड़ के एक कोने में लेके उसको मार के उसका वैक्सीन बनाना भी उतना आसान नहीं है। देखिए, अभी तक देयर आर 11 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ दिस वायरस, और 1300 से ज्यादा स्वरूप उसने धारण करके रखे हैं। द लेटेस्ट वन, उसकी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है, उसमें 31,000 अमाइनो एसिड उसके पास है। उसमें अमाइनो एसिड नंबर 614 पे अभी उसने एक संक्रमण, उसमें एक म्यूटेशन किया है। वहाँ जो लाइसिन था उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया है। तो अभी उसका नाम, नया नाम जो है, दैट इज D614L, D614G। तो ये म्यूटेशन से फायदा होगा या नुकसान होगा? ये ज़्यादा एग्रेसिव होगा या कम एग्रेसिव होगा, ज़्यादा बीमार करेगा कि नहीं, वो तो दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खुलासे हैं, वो बदलते भी रहते हैं। देखिए, ये एक नया वायरस है, इसके बारे में है कहीं टेक्स्ट बुक में या कहीं लिखा गया नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होता, हमारा शरीर को भी इसका पता नहीं है, इसीलिए तो इम्यून सिस्टम उसका रेजिस्टेंस नहीं बना पाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, पहले ऐसा एक स्टेटमेंट आया था कि द वायरस रिमेन अलाइव ऑन द स्किन फॉर 6 मिनट्स, लेकिन अभी 2 दिन पहले ऐसा है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस, इफ द टेम्परेचर इज बिटवीन 0 to 20 and the moisture is high and there is no sunshine, the virus can remain alive on the skin for 27 days. तो साहब, ये आंकड़े, ये पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से उसकी दवाइयाँ का प्रयोग भी बदलता रहता है। लेकिन मैं उस दिशा में नहीं ले जाऊंगा आपको। मैं यह कहना चाहूँगा कि ये वायरस वहाँ से निकला, हिंदुस्तान तक पहुँचा। एक बात याद रखिए, ये वायरस है ना, वो आता नहीं है, इट हैज़ बिन ब्रॉट टू यू। या तो वो आप ले आते हैं या कोई आप, समझ लीजिए, वहां से भी किसी ने कैरी करके हमारे तक पहुंचाया, और यहाँ भी हम उसको हमारे घर में ले आते हैं या कोई हमें दे के जाता है। देन एंड देन संक्रमण पैदा होता है। एक बार वो हमारे शरीर में आ गया तो उसका क्या क्या इलाज करना है वो भी डिपेंड करेगा कौन से स्टेज में है। लेकिन मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वायरस हम तक आता नहीं, हम ले आते हैं, तो क्यों ले आए?
हम कुछ ऐसा क्यों ना करें? यू सी, इट ट्रांसमिट्स इटसेल्फ थ्रू ड्रॉपलेट्स. अब ओ, इट्स नॉट एन एयरबॉर्न वायरस. अभी एक स्टेटमेंट आया था ICMR से, ये एयरबॉर्न तभी होता है व्हेन देयर आर गिवन सर्कमस्टांसेस. मतलब हवा से फैलने वाला नहीं है, ये ड्रॉपलेट से फैलने वाला है. पहले वो बता दूं मैं आपको कि समझो किसी को कोरोना लगा हुआ है, ही इज ए पेशेंट ऑफ कोरोना, तो ही विल डिस्चार्ज द वायरस एंड इन्फेक्ट द कम्युनिटी. ठीक है सर. तो अगर उसने मास्क नहीं पहना है, पहले ये समझ लीजिए कि द साइज ऑफ द कोरोना वायरस इज लिटिल बिगर देन हिज अदर ब्रदर्स. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40 माइक्रॉन्स टू 500. तो इसलिए इसका जो मास्क हम पहनते हैं दैट इज मिनिमम, इट हैज टू बी 15 माइक्रॉन एंड अबव, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है. हम ये समझेंगे कि हमने गले में मास्क लगा के रखा है, मुंह पे या एक दुपट्टा लपेट लिया, दैट विल प्रोटेक्ट अस. नो सर, वी नीड ए 3 लेयर मास्क. वी नीड वेरी स्पेसिफिकली मोर देन 15 माइक्रॉन, नहीं तो वो पेनिट्रेट करके अंदर आएगा एंड देन देयर इज नो सेंस ऑफ वेयरिंग दैट मास्क. ठीक है. 3 लेयर मास्क में आउटर लेयर है, दैट इज बी वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें से जो गिरेगा वो निकल जाएगा. बीच वाला है एंड अंदर जो वाला और लेयर, उसका अलग काम है. मास्क के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा. ठीक है. इन्फेक्शन, अगर किसी को ये वायरस लगा हुआ है तो वो डिस्चार्ज करेगा, ड्रॉपलेट के हिसाब से फेंकेगा और आप तक पहुंचेगा, मतलब कम्युनिटी से. राइट सर. वो जब सांस लेता है वो पेशेंट, देन ही डिस्चार्जेस 20 VP. अब ये VP जो है साहब, वो है वायरल पार्टिकल. वायरल पार्टिकल ये है कि हवा में जब ये डिस्चार्ज होता है, बिकॉज इट इज बीइंग लार्जर कंपैरेटिवली एंड बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली हैवियर. इसका वजन क्या है आप जानते हैं? The weight of the coronavirus is 0.85 into 10 raised to -18. ये तो आप मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा समझते होंगे. इन शॉर्ट, दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो इट इज़ द वेट ऑफ द वायरस is 1 attogram, that is 1 millionth of a trillionth gram. छोड़ दीजिए, ये सब टेक्निकल बातें हैं. Comparatively it is heavier, comparatively it is bigger, so it needs a vehicle. जब ड्रॉपलेट के हिसाब से जाता है, जब पेशेंट हवा में उसको फेंकता है, तो इट नीड्स हवा में रजकण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, उसके ऊपर बैठ के इट नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल. तो मैक्सिमम इट गोज अप टू 6 to 8 feet बिकॉज इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. और इन्फेक्ट होने के लिए यू नीड 70 बिलियन ऑर्गेनिज्म, 70 बिलियन कोरोना वायरसेस. अब मैं आपको VP की बात कर रहा था, वायरल पार्टिकल्स. जब एक कोरोना का पेशेंट बोलता है तो ही डिस्चार्जेस 20 VP. अगर वो खांसता है, सांस लेता है, तो दैट इज 30 VP. अगर वो खांसता है दैट इज इट इज 200. एंड अगर वो छींकता है देन इट इज 3500. It increases and this increases the viral load and the viral load will decide कि आपको कितना सीरियस वायरस लगेगा. इस समय देखिए, मास्क वगैरह नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रखा है, ये हम कह रहे हैं. तो मैं वहाँ से आपको उसकी पेनिट्रेशन पे ले जाऊँगा. मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वायरस पहले प्रीडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हमला करता था, श्वसन तंत्र के ऊपर. तो सांस की तकलीफ होती थी, ड्राई कफ होता था, हल्का सा बुखार आता था, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती थी, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता था, पेशेंट यूज्ड टू फील वेरी वीक एंड दैट वाज द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. मोर देन 40% ऑफ द पेशेंट मे नॉट रिप्रेजेंट विद सच सिम्टम्स. उसको कुछ और होगा, फिर भी उसको कोरोना वायरस होगा. बोले नहीं, मुझे तो बस 2 दिन हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, बट ही इज सस्पेक्टेड. अगर उसके घर में किसी को कोरोना है या किसी कोरोना के पेशेंट से एक्सपोज हुआ है, देन इट इज लाइकली टू बी कोरोना. वो ये कहेगा कि नहीं, मुझे आई लॉस्ट माई स्मेल, आई लॉस्ट माई टेस्ट. मीठी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है, सुगंध नहीं आ रही है, एंड इफ ही सस्पेक्टेड पर्सन, कोरोना हो सकता है.
वो ये कहेगा नहीं मुझे अभी इंडाइजेशन हो गया है, थोड़ा नौसिया होता है, भूख नहीं लग रही है, और डायरिया हो गया 2 दिन लेकिन अभी ठीक हो गया, बुखार तो मुझे है ही नहीं। कोई नहीं भाई, ये कोरोना हो सकता है। वो ये कहेगा कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं, आंख में कंजंक्टिवाइटिस, आंखें आती है ना, कंजंक्टिवाइटिस हो गया 2 दिन में, वो ठीक हो गया और अभी आई एम ऑल राइट, कुछ नहीं। सस्पेक्टेड है तो वो कोरोना हो सकता है। और समझ लीजिए कि अगर उसको कोरोना है तो ही इज एन इन्फेक्टिव एजेंसी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर किसी को कोरोना लगा है और उसके सिम्टम्स डेमोन्स्ट्रेट हुए या डिटेक्ट हुए, या डॉक्टर साहब को लगा कि भाई नहीं ये कोरोना का पेशेंट है, डाउन राइट, उससे पहले 7 घंटा पहले ही बिकम्स इन्फेक्टिव टू द सोसाइटी। अभी ये पहला सिम्टम निकला या कब डिटेक्ट हुआ, वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सो इट हैज बीन मॉडिफाइड एज नॉट 7 आवर्स बट 2 days। किसी को कोरोना है तो अंदर उसने जिसकी मुलाकात की है, जिसको मिला है, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई 2 days, नॉट 7 आवर्स। वैसे तो टेक्निकली 7 आवर्स है, 2 days, कि भाई मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है, आप अपना टेस्ट करवा लीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, राइट। अभी जैसे मैंने कहा कोरोना आप तक आया, ड्रॉपलेट से पहुंचा या तो हवा से पहुंचा। अब हवा से कैसा, मैंने कहा ये एयरबॉर्न तो है नहीं, लेकिन देखिए कोरोना को क्या पसंद है, कोरोना को ह्यूमिड एयर पसंद है, कोरोना को अंधेरा पसंद है, कोरोना को फ्रिज का पानी, ठंडक पसंद है। कोरोना डज नॉट लाइक ब्राइट सनशाइन, कोरोना डज नॉट लाइक वेरी वेल वेंटिलेटेड एयर, कोरोना डज नॉट लाइक हॉट वाटर। तो ये समझिए कि उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलेगा अगर आप उसको ऑफर करते हैं तो कंडीसिव एनवायरनमेंट, नॉन कंडीसिव एनवायरनमेंट क्या है, ए वेल एरेटेड, वेल वेंटिलेटेड प्लेस, ए ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन का मतलब जो सूर्य प्रकाश हमें मिलता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ह्यूमिडिटी 80 और लेस देन 80 and temperature is 28 and above. Mark my word, it is temperature, it's not heat. मैं गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बात करता हूँ। ये एक लेबोरेटरी एनवायरनमेंट सजा गया हुआ है, इट इज इन विट्रो नॉट इन विवो। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट में कोरोना विल लास्ट ओनली फॉर 2 minutes। बाकी जगह जो है वो दूसरी जगह पे अगर लगता है कोरोना, तो मेरे पास उसके आंकड़े हैं, वो कहाँ कहाँ कितना समय तक रहेगा और कितना हमें संक्रमित करेगा। जैसे मैंने कहा स्कीइंग के ऊपर अगर जो है तो वो 6 मिनट से, अभी बोला 21 दिन तक रह सकता है। कार्डबोर्ड के ऊपर है तो 4 घंटा तक रह सकता है। लिनन के ऊपर है तो 72 आवर्स तक रह सकता है। लेकिन ये आंकड़े बदलते रहते हैं, बिलीव मी। तो हमें उससे बचना है बिकॉज इट इज द एजेंसी दैट ब्रिंग्स द कोरोना टू यू, राइट। लेकिन हम पहले वो ड्रॉपलेट की बात करें। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या एयरबॉर्न से, तो एयरबॉर्न का खुलासा मैं यूं करना चाहूंगा कि इफ यू आर सिटिंग इन ए क्लोज एनवायरनमेंट, जैसे एक क्लासरूम है, जैसे हवाई जहाज है, जैसे सिनेमा हॉल है, जैसे मॉल है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां क्रॉस एयर नहीं चल रही, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, सब बारी दरवाजे बंद है, अंधेरा है, सूर्य प्रकाश अंदर आता नहीं है और एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो यहाँ किसी को अगर कोरोना है और वो खांसता है और छींकता है, देन द कोरोना वायरस बिकम्स एयरबॉर्न। इट कैन ट्रैवल अप टू 27 feet, समटाइम्स इट ट्रैवल्स अप टू इवन 52 feet ऑल्सो। तो ये इस प्रकार से एयरबॉर्न हुआ, वैसे नहीं। अदरवाइज तो वो फॉर्माइट से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप इसके 6 या 8 फुट के अंदर हैं, या आप उससे बात कर रहे हैं, यू आर एक्सपोज टू, एंड आपको कोरोना लगा। या इनडायरेक्ट में फॉर्माइट से, समझो आप कहीं मॉल में गए, किसी दुकान पे गए, किसी ग्रोसरी शॉप में गए और वहाँ आपसे पहले कोई कोरोना का पेशेंट आया था, उसने खांसा या छींका है और उसने कोरोना वायरस को चीज़ पे छोड़ दिया है, जैसे वेफर का पैकेट हो, मान लीजिए, वो आप उठा लिए तो वो आपके हाथ में आ जाएगा इनडायरेक्टली, एंड देन इट ट्रांसमिट्स टू यू, ठीक है। या तो आप घर में बैठे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, यू आर कन्फाइंड टू द 4 walls, लेकिन आपके घर में जो चीज़ आती है
वो कोरोना लेके आ सकती है। तो मैं हंसी में हमेशा यह कहता हूँ कि दोज हु आर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स, जो बाहर नहीं जाते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, उसको भी ये डर, उसको भी ये जोखम रहता है, बिकॉज एनीथिंग विच इज ब्रॉट टू यू इन द हाउस, जैसे कोई कुरियर आके गया, जैसे कुछ ग्रोसरी की चीज आई, जैसे आपने सब्जी भाजी खरीदी, जैसे कोई आपको मिलने को आया, जैसे न्यूज़पेपर वाला है, जैसे दूध वाला है, तो मैं इसको न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला या कोई ग्रोसरी वाला नहीं बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये सब का एक ही नाम है, वो है कोरोना। अगर आप यूँ समझ के चलेंगे तो यू विल बी मोर केयरफुल। देखिए, छोटी सी गलती भी इसमें भारी हो सकती है। हम जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ना साहब, तो आपने देखा होगा कि वहां लिखा हुआ होता है नजर हटी दुर्घटना घटी, और छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आपके तक कोरोना पहुंचाने वाली एजेंसी को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यू विल बी सरप्राइज कि सूरत और अहमदाबाद के आंकड़े बताते हैं 53 और 58 का फिगर था 2 महीना पहले। गृहिणी, हाउसवाइफ्स, उनको कोरोना लगा। कैसे? सब्जी भाजी वाला, वेंडर्स, दे आर कैरियर्स, उससे लग जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये कुरियर की चीजें आती हैं, ग्रोसरी वाली चीज आती है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि कोरोना लगा, उसके सिम्टम्स आए, और डेडिकेटेडली अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, अगर है तो ड्राई हिकिंग कफ होता है। कोरोना में कभी भी बहुत ज्यादा हाई फीवर नहीं होता, 99, 100, 101 तक रहता है वो। लेकिन ड्राई हिकिंग कफ है, देयर इज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में मुश्किल होती है, पेशेंट को थकान महसूस करता है, एंड ही वांट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप। अगर इस दिशा में बात नहीं गई, समझो पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं आए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे भूख चली गई, नौशा वोमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, या 2 दिन गंजन बना है, उसको बोल कभी सिम्टम, लेकिन सिम्टम्स and they will transmit and spread the disease. बल्कि उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसके अंदर डेथ रेट एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी रेयर, बहुत कम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें ज्यादा होता है। तो इस दिशा में जो बात जाती है, मैं ये भी कहता हूं कि हम स्क्रीनिंग करते हैं ना, टेम्परेचर माप के, कहीं मॉल पे आप खड़े रहते हैं, वो गन से आपका टेम्परेचर मापते हैं, बोले आपको फीवर नहीं है तो आपको कोरोना नहीं है। इट इज नॉट फुल प्रूफ। ओनली 20% ऑफ कोरोना पेशेंट्स में डेवलप फीवर, बाकी को और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा हंसी मजाक में कि आप कहीं खड़े रह के स्क्रीन कर रहे हैं कि भी इसको कोरोना है कि नहीं, वो थर्मोमीटर से आप उसको माप रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये भी करिए, वहाँ गुड़ रखिए, मीठी चीज, वो तो कुछ दे नहीं सकते, उसको खिलाइए, पूछिए भाई क्या टेस्ट आया, बोले हाँ साहब आया, चलो आपको कोरोना नहीं है। उसको गुलाब का पकड़ी, गुलाब का फूल सूंघाइए, अगर उसको स्मेल नहीं आ रही है, सस्पेक्टेड कोरोना हो गया। मेरा ये कहना है कि अभी भी फुल प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, लेकिन दिस इज इक्वली कॉमन, मोर देन 40-45% मैंने आपको कहा है। खैर, इसमें ज्यादा बीमार और ज्यादा डेथ रेट नहीं होता है। अब ये क्यों? जैसे मैंने कहा, कोरोना का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या है। कोरोना आप तक पहुंचा तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सिम्टम्स मैंने आपको बताया। बहुत सारी बातें मैंने बीच में छोड़ दी है, टेक्निकल बातें, ये पॉसिबल नहीं है 1 घंटा में ये सब मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता। असल में कोरोना ऐसा सब्जेक्ट है कि एक टॉपिक को लेके अगर मैं बोलने के लिए बैठूं और 1 घंटा मैं बोलूं तो ये पूरा जस्टिफाई करने में मुझे 3 महीने लग सकते हैं। तो आई हैव टू कंप्रेस इट एज मच एज आई पॉसिबली कैन, एंड आई कैन नॉट डेविएट फ्रॉम माई ओरिजिनल एम, जो मैंने आपको अभी बताया नहीं, अभी मैं बताने वाला हूँ कि मैं आज आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ। ओके साहब, कोरोना घर में आया, लग गया। एक बात याद रखिए कि अगर एक आदमी को कोरोना लगा तो दूसरे को लगने के पूरे चांसेस होते हैं, बिकॉज इट बिकम्स इन्फेक्टिव 7 आवर्स बिफोर, मे बी इवन 2 days। लेकिन समझो एक हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को कोरोना लगा, किसी ने उसको कोरोना लगा दिया है, उसका टाइम हो गया, उसका टेस्ट करवाया, पॉजिटिव है,
अच्छा, पॉजिटिव टेस्ट आने में द मीन इज 5 डेज, 4 to 7 के बीच में है। तो 5 डेज में वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑलरेडी ही इज इन्फेक्टेड, तो ही गोज एन इन्फेक्टिंग, तो ही इन्फेक्ट द अदर पर्सन। उसका वहां से जब दिन शुरू होगा तो डे 1 में उसका कोरोना का एंटीजन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन दूसरे का आएगा। तो कहते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो उसमें हस्बैंड का पॉजिटिव आया, वाइफ का पॉजिटिव नहीं आया है, तो उसको कोरोना नहीं है। नो 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 नो, इट्स मिसगाइडिंग। उसको बराबर समझना पड़ता है आपको। और टेस्ट में भी एंटीजन टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर हैं, एचआरसीटी हैं, हर एक की अपने मेरिट्स होती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमें प्रैक्टिकल बातों में ही रहना है, इसीलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और डाउटफुल में है तो आपको वहां तक जाना पड़ता है। हाँ, एक बात अलग है, जब कोरोना लगा तो आपको कुछ बेसिक टेस्ट करवा के ही रखने हो, इवन ऑन डे 1। जैसे हीमोग्लोबिन, सीबीसी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ESR एक टेस्ट होता है, जिसको एक बोलते हैं, हम बोलते हैं CRP एक टेस्ट होता है। ये बढ़ता है, ये हमारा पैरामीटर है। अगर हो सकता है तो और टेस्ट हम करवाते हैं, जैसे डी डायमर है, जैसे फेरेटीन है, जैसे HD है। वो एक्सपेंसिव और बड़े टेस्ट होते हैं, वो नहीं भी करवा सके तो इतना तो हम करवा ही सकते हैं। ओके, कोरोना का पेशेंट है, इसके ये टेस्ट पॉजिटिव हैं, वो आपको हर रोज करवाने हैं, और ही इज़ नॉट वेरी सीरियस या एसिम्टोमेटिक हैं, तो आप उसको घर में रख के ट्रीटमेंट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। उसको डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज मोर मेंट फॉर प्रोफाइलैक्सिस रादर देन क्यूरेटिव। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी और दवाइयाँ हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, वगैरह वगैरह है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उसको दी जाती हैं। आपके डॉक्टर साहब मरीज के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से आपको वो दवाइयाँ देंगे, लेकिन आपको खुद को वो मॉनिटर करना है। पेशेंट को घर पे रखना है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत कब आएगी? सबसे पहले मॉनिटर क्या करेंगे? मॉनिटर में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, और सबसे बड़ा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल आपको लगातार देखते रहना है। ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार, 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को आपको 6 चीज़ करनी है। इट इज 6 AM एंड 6 PM विथ 6 थिंग्स यू हैव टू डू। उसको मेक हिम वॉक फॉर 6 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक, और फिर उसका ऑक्सीजन का लेवल आप मापिए। इफ द लेवल फॉल्स बाय 5%, रिमेंबर ही इज गोइंग फॉर न्यूमोनाइटिस, मतलब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना। अगर उसको सिर्फ टेकिकार्डिया है, ऐसा भी मैंने देखा है कि पेशेंट को ऑक्सीजन का लेवल बराबर है बट हिज पल्स इज वेरी हाई, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया। अब फास्ट पल्स है, उसको आपने इग्नोर किया, रात को एकाएक पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो गया, रात को 2 बजे पैनिक क्रिएट हो गया, भाग के आप हॉस्पिटल गए, एडमिट किए, बहुत सी गड़बड़ हो जाती है। बट इफ यू कैन कंपेयर, इफ यू कैन टेक केयर ऑफ द पल्स रेट एंड टेम्परेचर, दोनों देखिए, बुखार बढ़ता है 1 डिग्री, इट विल राइज द टेम्परेचर बाई 1, 37 से 38, 38 से 39। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ऑक्सीजन का लेवल फॉल होगा। जैसे पैनिक, डोंट वरी, कंट्रोल द टेम्परेचर। उसकी दवाइयाँ हैं, उसके स्लाइड्स वगैरह मैंने बना के रखी है, अभी मैं नहीं दिखा सकता कौन कौन सी दवा कब कब दी जाती है। तो उससे आप उसका अगर टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाएगा, वो पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें हमें जानना है, जो घर पे हम मैनेज कर रहे हैं। घर पे जब मैनेज करते हैं तब आप और उसको क्या करेंगे? आप उसको दिन में 3 बार नींबू शरबत पिलाइए, आप उसको हल्दी का दूध वगैरह पिलाइए वगैरह, लेकिन कीप हिम एक्टिव। नींद, स्लीप ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7.5 घंटे की नींद से ही हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी और हम कोरोना से लड़ सकेंगे। तो द स्लीप ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंग्जाइटी फैक्टर जो है, जो कोर्टिजोल को ले आता है, वो भी इट्स ए वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और 2 दिन पहले देखिए, कोरोना में हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें करती हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले एक नया उसे नींद नहीं है, और इट इज का संक्रमण जो है कोरोना से, जो के बाद
उसको रोकने में मदद करता है मेलाटोनिन। और यू विल बी सरप्राइज कि अभी हमारे यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसको जो ट्रीटमेंट दी गई थी जिसमें वो उनको एंटीजन का कॉकटेल भी दिया गया था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसको ये मेलाटोनिन भी दिया गया था, वो जल्दी रिकवर हो गए क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ उनको सही समय पे दी गई। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे रेमडेसिविर नाम की दवा है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, जैसे स्टेरॉइड है, लेकिन इन सब दवाओं का एक वक्त, एक समय होता है। कौन सी दवा कौन से समय पे कारगर रहेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम डॉक्टर साहब सब जानते हैं, उनको लिए जानना ज़रूरी भी है। मैं दूसरी तरीके से आपको समझाऊं, समझो कहीं आग लगी है आपके इलाके में और कोई मकान जल गया है, और 5 दिन के बाद आप फायर ब्रिगेड को बुला के बोले इसके पानी फेंको, तो वो हंसेगा कि अभी क्या है, अभी तो इसमें कोई है ही नहीं। तो कोरोना जब एंटर करता है, तीसरे दिन क्या करता है, चौथे दिन क्या करता है, 7वें दिन वो क्या करता है, 10वें दिन वो क्या करता है, वो जानकारी हमारे पास है और अकॉर्डिंगली ये दवाएं दी जाती हैं। जैसे मैंने कहा प्लाज्मा थेरेपी, अगर आप किसी को 11वां और 12वां दिन पे प्लाज्मा थेरेपी देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट एजम्पशन। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि मेडिसिन भी सही समय पे दी जानी चाहिए, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी वरी अबाउट इट। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये समय कौन सा है, क्योंकि आप घर बैठ के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, आइसोलेट किया है उसको, आप जैसा मैंने कहा शरबत पिला रहे हैं, आप उसको देखभाल कर रहे हैं, आप उसका ऑक्सीजन माप रहे हैं, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, थर्मोमीटर से लेके सब आप कर रहे हैं, उसकी नींद की आप केयर कर रहे हैं। ही मस्ट हैव ए वेरी रिच प्रोटीन डाइट, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना आपको खिलाना है, जिस तरह से ड्राई फ्रूट से लेके आप जो भी खिलाना चाहें उसको खिलाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज रिमेंबर दैट ही नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए कोरोना से हमारा खून गाढ़ा होता है, अगर हमें खून को पतला करना है, उसमें आता हूं मैं अभी, तो वी नीड वाटर। यूं समझ के आप एक दिन में उसको कम से कम 4 लीटर पानी पिलाइए, लिक्विड्स। अच्छा, अभी आप घर पे मैनेज कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रेशन बराबर है? तो समझिए कि आपने 1 लीटर पानी पिलाया, विद इन 1 आवर ही मस्ट पास एटलीस्ट 500 ml ऑफ यूरिन, मतलब आधा पेशाब में निकलना चाहिए। अगर नहीं तो समझिए कि इसको और पानी की जरूरत है। So this is how you can manage the patient in your house without going to a doctor or without worrying whether the doctor comes to you. बात मेरी यहाँ से अब शुरू होती है। देखिए 80% ऑफ द पेशेंट्स, अब ये आंकड़े हैं, जो यंग एंड स्ट्रांग है, जैसे आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आप यंग एंड स्ट्रांग है, उसको कोरोना लगता है, रेस्पिरेटरी और इवन नॉन रेस्पिरेटरी, वो संक्रमित होते हैं, थोड़े से बीमार होते हैं, 1-2 दिन घर में लेटना पड़ता है, डॉक्टर साहब की दवाइयाँ लेते हैं, डायग्नोस हुआ तो भी कोई नहीं ठीक, विद इन 10 days आप ठीक हो जाते हैं। रिमेंबर, अभी के आंकड़े तो ये तय कहते हैं कि ऑन 11th डे, प्लीज मार्क माई वर्ड, ऑन द 11th डे ए पर्सन इज नॉट इन्फेक्टिव। 11वें दिन वो अपने परिवार को मिल सकता है, अपने बच्चों को गोद में बिठा सकता है वगैरह, लेकिन वो 10 दिन जो हैं पहले उसको संभालना है। स्पेशली आप अगर घर पे रखे हुए हैं पेशेंट को आइसोलेट करके, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया है, तो डेंजर कहाँ से शुरू होता है? इन्फेक्शन का मैंने बता दिया, 7 hours और 2 days बिफोर द पर्सन इज इन्फेक्टेड। द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन द इवनिंग ऑफ 3rd डे, तीसरे दिन शाम या चौथे दिन की सुबह से लेके तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, 3rd, 4th, 5th और 6th डे, दिस इज द टाइम विच इज डेंजरस। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो यही समय पे होगी, चाहे आप घर पे पेशेंट है, चाहे हॉस्पिटल में है। आप पैरामीटर्स माप रहे हैं, उसमें आपको उसका पता भी चल जाएगा। आप उसका ब्लड टेस्ट जैसे मैंने कहा हर रोज करवाते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। और यही समय पे, जैसा मैंने कहा कि आइदर इट इज इवनिंग ऑफ 3rd डे और मॉर्निंग ऑफ 4th डे, और सिम्टम्स आए, पेशेंट इज वर्सनिंग, रेस्पिरेटरी की ओर बात जा रही है, न्यूमोनाइटिस, दिस इज द टाइम यू नीड एंटीवायरल ड्रग्स लाइक रेमडेसिविर या कुछ भी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, मैं किसी के ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। ओके, between the evening of 3rd day or morning of 4th day till the 7th day, this is the time, if required, you should give plasma. सब ये प्लाज्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा इज नॉट अ वैक्सीन, प्लाज्मा इज एक्चुअली नॉट अ ड्रग। प्लाज्मा ये है कि किसी को कोरोना लगा, वो आप जैसे यंग और स्ट्रांग था, उसको ज्यादा बीमारी नहीं हुई, ना हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ना उसकी डेथ हुई, ही कुड फाइट अगेंस्ट
उसके शरीर ने कुछ एंटीबॉडीज बनाए है, वो एंटीबॉडीज रेडी हुए, द मैक्सिमम टाइटर कम्स ऑन 42nd डे, बट वी कैन ऑलवेज मेजर ऑन 28th डे. 42nd डे में ही गेट्स मैक्सिमम, तो उसका ब्लड रिक्वेस्ट करके डोनेट करते हैं, और अगर हम पेशेंट को देते हैं तो दिस रेडीमेड डोज ऑफ एंटीबॉडी विच कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना, एंड दैट्स अ मेडिसिन. हाँ, ऐसे में एक बात और भी है, ऐसा कहा गया है कि दोज हु आर हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, उसको कोरोना लगने के चांस कम है, और जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसको ज्यादा है. लेकिन ये सब अनकन्फर्म बातें हैं, लेकिन ऐसा भी एक ब्लड के लिए आया गया है. मैंने ये कहा आपको कि उसको रेस्पिरेटरी के अलावा बहुत से सिम्टम्स आते हैं, लेकिन एक बात मैं रिमाइंड करके फिर से कहूँगा, ब्लड, खून में कोरोना जो है वो हमारे खून पे भी हमला करता है. इट्स नॉट ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हमारे खून में, हमारे शरीर में जो ब्लड है, उसमें जो खून है, उसमें जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो वही एक सेल है जिसमें सेल कोश नहीं होता, देयर इज नो कोश के अंदर, देयर इज नो न्यूक्लियस इनटू इट. तो कोरोना, उसका जो एसी रिसेप्टर है उस पर जाकर बैठेगा, उसको जैसे एक ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, वो खोल देगा, फिर वो अंदर घुस जाता है. As soon as the corona enters into a living cell, corona is basically an RNA, it's a non-living thing. जैसे ही वो अंदर शरीर के कोश में घुसा, और हमारा शरीर कोशों से बना हुआ है, तो वो दो बात करता है. नंबर एक, इट अटैक्स आवर डीएनए जो कोश के अंदर होता है, एंड इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट. तो जैसे मैंने कहा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उसको अटैक करने से रोकेगी, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उसको मल्टीप्लाई करने से रोकेगी. तो दवाओं का भी एक सही समय पर रोल बन गया. ओके सर, ये हमारे शरीर में गया, उसने हमारा जो डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा हमारा कोश का जो वातावरण है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसको खराब कर दिया. तो दी RNA, which is basically which has come all the way from China to you, has reached its destination. वो it converts itself into DNA. तो हो गया डिसॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड वंस इट्स a DNA, it's a living thing. एंड वंस इट्स a living thing, फटाफट वो अपनी जेरोक्स निकालने लगता है. मतलब वो 2 में से 4, 4 में से 16, 16 में से 32, 64, फटाफट वो अपनी तादाद बढ़ा देता है. ओके, और वो जैसा मैंने कहा कोश के अंदर को तोड़ देता है. यही बात हम रेड ब्लड सेल्स पे ले आते हैं. रेड सेल्स में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसको तोड़ने से हीमोग्लोबिन कम होता है. वैसे भी हीमोग्लोबिन की कमी है बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, और आरबीसी के तोड़ने से आयरन लिबरेट होता है, और फ्री आयरन इन द ब्लड इज ए वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर देम टू रिप्लिकेट. तो कोरोना के लिए ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कंड्यूसिव हमारे लिए. इफ देयर इज ए फ्री आयरन इन अवर ब्लड, तो इट्स टॉक्सिक टू द लीवर, इट इज टॉक्सिक टू द किडनी, इट इज टॉक्सिक टू द ब्रेन. तो हमें नुकसान होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी फॉल हो जाता है, और उसको डुप्लीकेट करने में फायदा मिल जाता है. इसके लिए भी दवाइयां हैं, कोलचिसिन, अभी तो हम हैं, मैं उसे भी अभी आ ही रहा हूं. तो ये बात है. दूसरी बात, हमारा खून जो है ना, उसको वो गाढ़ा करता है, इट बिकम मेक्स थिकर. तो क्या है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज हैम्पर्ड. जो आराम से खून घूमता था वो भी आराम से नहीं घूमता है, क्योंकि खून गाढ़ा होने लगा है. तो उसको हमें खून को पतला करना है. अब गाढ़ा खून होने से पहले क्लॉट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लॉट्स. वो दिखते नहीं है लेकिन बन जाते हैं. वो आता कहाँ से है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल. कौन सा कोलेस्ट्रॉल, उसको बोलते हैं LDL. दूसरा कौन है, VLDL. ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा होके कैल्शियम के साथ होके माइक्रो क्लॉट्स बनते हैं, और माइक्रो क्लॉट्स सर्कुलेशन को स्लगिश करते हैं. और अगर आगे बढ़ी, अगर ब्लड थिनर नहीं दिया, अगर थ्रोम्बोलाइटिक, दो अलग अलग हैं भाई, समझिएगा, अगर ब्लड थिनर नहीं दिया या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं दिए, तो वो जो माइक्रो क्लॉट्स मैक्रो क्लॉट्स में बदल जाएंगे, और खून का घूमना बिल्कुल 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 बंद हो जाएगा. तो आप कितना भी उसको ऑक्सीजन दें, वेंटिलेशन पे लगाएं, लेकिन वो पहुंचाने वाला मैकेनिज्म जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, और वो उसको बोलते हैं DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग. ये सब बहुत से टेक्निकल नाम मैं भी बीच में नहीं ला रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको. तो वो खून ना घूमने से आदमी की मृत्यु हो जाती है. एक आध टुकड़ा अगर सैटेलाइट बन के बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म.
अगर वो हार्ट में गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर ब्रेन में गया तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, लकवा हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा, अगर लंग्स में टुकड़ा चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आदमी मर जाएगा। तो खून को पतला रखने के लिए, थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी करने के लिए भी हमें कुछ डेफिनेटली करना पड़ेगा, ये बात है। एक बात और है, वो है साइटोकाइनिन स्टॉर्म। लेकिन कहना चाहता हूँ, देखिए हमने कहा कि हमारे शरीर में ये नया वायरस है, तो हमारा शरीर भी नहीं जानता कि इसके साथ लड़ाई कैसे लड़ें, और फिर एकाएक पता चल जाता है कि हाँ भाई लड़ाई छिड़ गई है, तो देयर इज हाइटन रिस्पॉन्स। ये हाइटन रिस्पॉन्स को बोलते हैं साइटोकाइनिन वेव, और अगर आगे बात बढ़ी तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म, और ये हमारे शरीर को नुकसान करता है। इसके बहुत सी मैकेनिज्म है, वो मैंने स्लाइड्स में आप तक पहुंचा दी है, अगर किसी को वो देखना हो तो देख सकते हैं कि ये कहाँ होता है और कहाँ कहाँ इसको रोका जा सकता है। जैसे विटामिन D3 है, वो कहाँ पे साइटोकाइनिन स्टॉर्म पे रुकावट डालेगा और रोकेगा। जैसे विटामिन C है, वो कहाँ रुकावट डाल के इसको रोकेगा, प्रक्रिया को स्टॉप करेगा। जैसे हल्दी, इवन टर्मरिक कहाँ जाके करता है वो अभी डिफाइंड है, पता चलता है। तो हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म हो सकता है। हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म अगर होगा तो हमें उसको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने रेमडेसिविर ऐसी कुछ दवाएं अगर पेशेंट को दे के रखी है तो प्रोटोकॉल है कि स्टेरॉइड में भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं दे सकते। मतलब वो बहुत टेक्निकल बात है, आप डेक्साना नहीं दे सकते, आपको मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना पड़ेगा स्टेरॉइड में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी बातों का हमें अगर पता है, टॉपिक इस तरीके ये तोड़ेगा और इसकी ये दवा है, तो उसको रुका क्यों नहीं सकते? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आदमी कोई जनवरी या दिसंबर या मार्च में बीमार हुआ और उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि ये सब बातें हम नहीं जानते थे, अब हम जान गए हैं। अगर नवंबर दिसंबर में किसी को कोरोना लगे, भगवान ना करे वो सीरियस हो जाए और उसको मौत की नौबत आए, तो नहीं आएगी। इतनी सारी बातें अगर हम जानते हैं, इतनी सारी दवाओं का नाम हम जानते हैं, इतनी सारी प्रक्रिया को हमने पहचान लिया है कि भाई ये यहाँ काम करेगा, वो वहाँ काम करेगा, तो उसकी क्या मजाल है कि भाई वहाँ हम उसको रोक ना सके? तो डेथ रेट अभी कम होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये सारा उस तरफ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के 80% पेशेंट जो हैं, जो आप जैसे यंग और स्ट्रांग है, वो ठीक होकर निकल जाते हैं। जिसको कोरोना लगा हो गए वगैरह, उसके संक्रमण, उसका इन्फेक्शन मैंने बोल दिया, रिपीट नहीं करूंगा मैं। बाकी जो 20% है वो कौन है? सॉफ्ट टारगेट। तो ये सब सॉफ्ट टारगेट का क्या मतलब है? सॉफ्ट टारगेट वो हैं जो ओल्ड एंड संक्रमित हैं, मतलब ओल्ड मैन है या उनको कोई और बीमारी है, या प्रेग्नेंट लेडी घर में है, या कोई 10-11 साल से छोटी उम्र का बच्चा है। ये मैं बता दूं कि बच्चों को लगता है लेकिन दे डोंट बिकम सीरियस, दे डोंट डाई। तो बच्चों को लगने का और उनको सीरियस होने का बहुत मिनिमम नहीं के बराबर चांसेस होते हैं। वो तो है ही बिकॉज ऑफ थाइमस। लेकिन दे बिकम इन्फेक्टिव, दैट यू कैन नॉट फॉरगेट कि वो इन्फेक्शन वाला बच्चा 10 दिन तक वो इन्फेक्ट करता रहेगा टिल द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। ओके, तो इन सब लोगों को लग जाता है। ओके, अब मैं बात करूंगा कि हमारे घर में ओल्ड है, 60 साल से उम्र के ज्यादा वाले लोग। अब देखिए साहब, 60 साल की उम्र के ज्यादा वाले लोग जो है ना, उनको कोई भी बीमारी ना लगे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ ना कुछ होता है भाई। अब डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, मोटापा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कुछ भी होता ही है, या नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साहब, आजकल मैंने एक साइकोलॉजी डेवलप होती हुई देखी है कि भाई 80% वाले तो ठीक होके निकल गए। अब ये 20% जो सॉफ्ट टारगेट है, उसमें क्या समझो, मैंने सुना है कि भाई हाँ, हमारा एक दोस्त था, उसके पिताजी अहमदाबाद में थे, उसको कोरोना लगा, वो गुजर गए, लेकिन ही वो 75। या कि हाँ भाई, हमारे दोस्त की एक मम्मी थी, हमारी आंटी राजकोट में थी, कोरोना लगा, सी वो 70, लेकिन उसका डायबिटीज था तो वो गुजर गई। व्हाट द हेल इज दिस? अब क्या कहना चाहते हो? अगर किसी की उम्र 70 या 75 है तो उसको मरने देना है? यू वांट टू किल हिम? वो मर जाएगा क्या? उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसका कसूर हो गया क्या? उसकी गलती है? क्यों मरेंगे? काय को मरने देंगे हम? ये रोक सकते हैं। और ये रोकने के लिए आज मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं, ये रोकने के लिए
समझो आपके पिताजी, समझो मैं दूसरी तरीके समझाऊंगा, बोलते हैं 97% तक लोग बच गए, ठीक हो गए, अच्छे हो गए, निकल गए, लेकिन साहब 3% तो नहीं बचे ना। 98 हो तो 2% नहीं बचे ना। अगर 2 या 3% में आपका नंबर लग गया तो माफ करना, आपके पिताजी का नंबर लगा या आपकी मम्मी गुजर गई तो आपके तो 100% हो गया। वो 2% 3% वाली बात ही नहीं रही। तो इन लोगों का क्या कसूर है? इनको क्यों नहीं बचाया जा सकता? 80% बच गए, 20% में से 10% ऐसे हैं जिसको आईसीयू में नहीं जाना पड़ता। हाइपोक्सिया की बात में बीच में कहना रह गया, बाद में बताता हूं मैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ओल्ड कपल होना, ओल्ड एज होना कोई गुनाह हो गया है? उसको कौन बचाएगा? और अगर इन टाइम इनको ट्रीटमेंट और इन टाइम अटेंशन को हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाना पड़ता है, तो फिनोमेना उसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। अब हैप्पी हाइपोक्सिया ये है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जब गिरता है तो हमारा शरीर उसको सेंस करता है कि भी ऑक्सीजन कम हो गया। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन कम है, तो हम ज्यादा सांस लेने लगते हैं। 10 लेते हैं तो 12 से 15 हो जाता है, 20 भी हो सकती है। 1 मिनट में 25 सांस ली, उसको बोलते हैं टेकिपनिया। और ब्रेथलेस हो जाता है आदमी, ठीक है। तो ये पता चलता है कि भाई ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा हो गया बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। कोरोना कुछ ऐसा करता है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल गिर भी गया हो उसका पता नहीं चलता, तो उसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। और फिर यकाएक इफ द लेवल हैज गॉन डाउन टू लेस देन 90 और 84 और 85, इट गोज डाउन टू 40 और 50, पेशेंट बिकम्स वेरी सीरियस एंड डाइज। तो अगर पहले से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हैप्पी हाइपोक्सिया है तो वहां तक जाने की उसको नौबत ही नहीं आने देंगे। हो सके तो घर में ऑक्सीजन का एक बोतल रखा है, उसको सूंघाएंगे, या तो उसको उल्टा लेटा के बोलेंगे द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स विल गेट एक्सपांडेड। आगे कुछ एब्डोमेन पे आप पिलोज रखें हैं और उसको एक्सरसाइज कराएं कि भाई इस तरीके से आप सांस लो तो हैप्पी हाइपोक्सिया से ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाकी के 10% बच गए, बाकी के 10% जो आईसीयू में गए, जो सीरियस हो गए, जो आपके घर में है, जो आप उसको घर में मैनेज कर रहे हैं, और वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था, ये थायराइड था, तो मर गए। क्यों? अगर आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, आपकी माँ को अस्थमा है, तो आप चाहेंगे वो मरे? कौन खड़ा रहेगा? कोरोना का उनका कौन? और घर पे रह के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बीच में आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सगे हैं, आपके माँ पिता हैं, कोई भी, सॉरी मैं ऐसी उसके और कोरोना के बीच में कौन खड़ा है? मैं खड़ा रहूंगा? नहीं, माफ करना, सॉरी, मैं नहीं, आप खड़े रहेंगे। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप खड़े रहेंगे। अगर आपके पिताजी को कोरोना लगने वाला है तो आप बीच में खड़े रहेंगे कि तेरी क्या ताकत है कि मेरे पिताजी को तू मारेगा। अगर आपकी माताजी को अगर कोरोना लगा है और उसको ये संक्रमण के चांसेस हैं तो आप बीच में खड़े रहेंगे? मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और ये मुमकिन है। We can reduce the rate of infections and number of patients, and we can reduce the percent of death also. ये हो सकता है, सही समय पे अगर सही काम किया गया तो ये हो सकता है। इसके लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये सब जो पैरामीटर्स मैंने बताया, अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करते हैं और उसका ठीक से इलाज करते हैं, उसका ठीक से अटेंड करते हैं, तो कभी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ना तो खून गाढ़ा होके सर्कुलेशन का रोकेगा, ना साइटोकाइनिन स्टॉर्म होगा। साइटोकाइनिन स्टॉर्म के लिए एक बात मुझे और आपको बताना है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म से भी जो नुकसान होता है, विच इज बिगर देन द रोलॉजी, द ब्लड गाढ़ा हो जाता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, हो जाते हैं, पेशेंट का मृत्यु हो जाता है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो है उससे इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेम समझिए, आप कहीं हैं या आपके मुंह में कुछ आ गया, लग गया, तो क्या होता है? बहुत सारा पानी निकलने लगता है आंख में से, मुंह में से आंसू निकलने लगते हैं। दिस नेचुरल रिस्पॉन्स, बराबर। सिमिलरली ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, अगर वो न्यूमोनाइटिस तक बात चली गई, वायरल न्यूमोनाइटिस,
वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा। जैसे हमारे आंख में से आंसू पानी निकलता है, उसी तरीके से वहाँ भी देयर इज लेयर ऑफ सिक्रीशन, और वो इस जगह पे होता है विच इज द स्मॉलेस्ट द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लंग। एल्वियोलाई जो हैं जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वो अंदर ले आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो जगह पे अगर बीच में एक पानी की दीवार आ गई तो एक्सचेंज होगा नहीं। वैसे भी हेपी हाइपोक्सिया है, वैसे भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है बिकॉज द रेस्पिरेटरी सेंटर इज डिप्रेस्ड, वैसे भी देयर इज स्लगिश ब्लड सर्कुलेशन और हीमोग्लोबिन कम है, तो वैसे भी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। ये सब टोटालिटी में मिलके मरीज को मार देते हैं। तो हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म डेवलप नहीं होने देना है, उसकी दवाइयां हैं हमारे पास। अगर अब वो डेवलप हो रहा है तो उसका पता हमें चल जाता है हमारे पास, और अगर डेवलप हो गया तो उसको कैसे रुकाना है हमारे पास है साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब सब जानते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं तो डेथ होगा नहीं, बात सीधी है। लेकिन बचाना है आपको, अपनी खुद को भी और अपने परिवार को भी। अभी हम ये कहते हैं सॉफ्ट टारगेट, ऐसा मैंने कहा, तो ये सॉफ्ट टारगेट शब्द है, उसका क्या मायने है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टारगेट? बोलते हैं उसकी लड़ने की ताकत कम है, उनकी इम्यूनिटी कम है। देखिए आप है और आपके पिताजी है, मैं आपके फैमिली की ही बात करूंगा सो दैट यू कैन टेक अवे द मैसेज फ्रॉम मी व्हेन यू गेट अप फ्रॉम हियर। आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आपकी बहन है, आपके भाभी हैं, कोई भी हैं जो सॉफ्ट टारगेट वाले लोग हैं, ओके सर, या किसी को बीमारी नहीं है लेकिन सिर्फ ओल्ड एज है, वो बेचारे का गुनाह हो गया क्या? ओके, तो इन लोगों को कोरोना से लड़ना है लेकिन उनकी लड़ने की ताकत शक्ति कम है। तो क्यों भाई? उसकी प्रतिकार शक्ति कम है, इस रेजिस्टेंस इज लो, उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर है? ये लड़ने की ताकत की जो बात है, ये इम्यून सिस्टम पहले तो किस चिड़िया का नाम है वो बताइए सर। ये इम्यून सिस्टम है क्या, वो कैसे काम करती है? और अगर मुझ में है तो मेरे पिताजी में क्यों नहीं है? अगर मैं बच के निकल गया तो वो बच के क्यों नहीं निकल जाएंगे? व्हाट द हेल इज दिस? ये इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड तगड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसको ड्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जो आपसे निकलता है ना सर, वो आपके ओल्ड माता पिता या जो ओल्ड लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, उसमें नहीं निकलता है, लेकिन उसमें दो खामियां होती हैं। किस प्रकार की? ये नंबर एक, द एडिक्वेसी विथ विच द सिस्टम हैज टू रिएक्ट एंड द टाइम विथ विच द सिस्टम हैज टू रिएक्ट। ये दोनों जगह पे मार खा जाते हैं। जो आपकी सिस्टम नहीं, उनकी सिस्टम, क्योंकि एज है, द सिस्टम स्लगिश है। दूसरी तरीके से मैं आपको समझाऊं, माफ करिएगा, मेरा एग्जांपल देने का यही तरीका है, माफ करना, आई एम सॉरी। मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे 25,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया, तो साहब हमें भी 25,000 सैनिक को ही खड़ा करना पड़ेगा ना। 10 कैसे जीते? डेडिकेसी, ठीक है, ओके सर। दूसरा, उन्होंने 25,000 सैनिक को खड़ा करने के लिए 24 घंटा लगाया, ओके, और आपने ये 25,000 सैनिक खड़ा करने के लिए 3 दिन लगाए, तो नहीं चलेगा। यू कांट विन द वॉर। सो द एडिक्वेसी विथ विच and the time with which the system reacts in your body does not happen in your father mother. तो उसको क्या कर सकते? लड़ाई की तो है नहीं, है जलना ही अच्छी है, ज्यादा बीमार करना पड़ेगा वेरी रेयरली अनलेस इट इज नॉट प्रॉपर्ली अटेंडेड टू। लेकिन ओल्ड कपल माता पिता की करेंगे, इम्यून बूस्ट नहीं की जा सकती। इम्यून सिस्टम कैन नॉट बी बूस्टेड, वो एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। अब डिफॉल्ट शब्द तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझते हैं, आप तो इंजीनियरिंग में हैं, ठीक है ना। और हाँ, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको तगड़ा कर सकते हैं, उसकी कमियां ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि वो भी तैयार हो जाए और कोरोना के सामने लड़ने की अगर नौबत आए तो लड़ें। तो वो क्या है? जैसे 3
जैसे विटामिन B3, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे विटामिन C, जैसे जिंक। अब ये तय किया गया, लेकिन ये आंकड़े भी जिंक अभी ये है कि इट इज गिवन ग्राम ट्वाइस ए वीक। अगर किसी डाउटफुल है कि इसको लगा है या लगने वाला है या लग चुका है, अभी रिपोर्ट्स नहीं आए, डाउटफुल है, 45 मिलीग्राम पर डे। अगर हॉस्पिटल में चले गए, एडमिट किया, देन इट इज 50। And if the patient is in ICU, the zinc is given as 61 milligram to 100 milligram per day. ये देखा गया ICU की कमी पाई गई, उसमें विटामिन D3 की कमी पाई गई। पहले से उनके सिस्टम को बूस्ट करने के लिए 2-4 गोलियां खानी, पीना है, नींद लेनी। पेरेंट्स ना करे अगर हमला हो गया को क्या जोर मेरे, तो आप अपने बिस्तर के नीचे रखे हैं, एक आध टॉर्च बैटरी अपने पिलो के नीचे रखे हैं, रात को ढूंढने कहाँ जाएंगे? अगर 2 बजे चोर आ गया तो वाइफ को क्या बोलेंगे, ये टॉर्च लेके आओ क्या? जी नहीं, आप तैयार हैं, यू आर रेडी टू फाइट। तो रहेगा तो आप उसका लड़ाई करेंगे। तो एक आध हॉकी स्टिक अपने पिताजी को भी दे के रखिए, एक आध उनको भी दीजिए, वो लड़ेंगे, मारेंगे, डरेंगे नहीं। और ये आप है कर सकता है। जैसे मैंने कहा, नींद से लेके एक बात और है, जो उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, दे हैव टू बी इन पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड। तो प्रफुल्लित रहना है, डरना नहीं है। हम कहेंगे भाई कोरोना लग गया, सो व्हाट, ऑक्सीजन गिर गया, सो व्हाट, बुखार आ गया, हाँ तो क्या हो गया, लड़ लेंगे उसके साथ, हम जानते हैं अभी तो हमारे पास इसको अटेंड करेंगे, हम उसको तैयार रखेंगे, उनको बूस्ट करके रखेंगे, उसको डिप्रेस नहीं होना। देखिए, कोरोना इज नॉट ए बीमारी, नहीं दूसरे का आदमी नहीं। अगर आप उसके बाद अभी एक नया 9 दिन खत्म हो गए, तो 1 से 9 इवनिंग ऑफ डे 3 और मॉर्निंग लेके 96 आवर्स आपको पेशेंट आप करना है। वो तो उसके बाद ऐसा अच्छे हो गए हैं, 10-12 दिन से हैं, और पता चल देखा भी है कि रिलेटिव्स ऐसा बोलते हैं कि भी हमारे पेशेंट थे हॉस्पिटल में, अच्छे बिल्कुल थे, शाम को तो उन्होंने खाना भी खाया, बाद को डॉक्टर साहब का फोन आया कि भी वो सीरियस हो गए, मर गए। ये तो अगर साहब नहीं की कंफ्यूज्ड, उस समय आपका कोरोना का टेस्ट जो के भी है नहीं, ये अभी एक हुए दिन तक अगर आपको बाहर जाएगा, आपका हृदय है, आपकी है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के जाएगा वो। क्यों?
वो बता देता हूँ। समझो आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, उसको कंट्रोल 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 is taking booster medicine to boost whatever is the background. बीमार होती है क्या है में हमारी नाड़ियां जो हैं, ब्लड वेसल्स, उसका जो सबसे अंदर का लेयर है इंटीमा, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, आग जल रही है, क्योंकि ये बीमारी कंट्रोल, तो ये साइटोकाइन गलती हुई ना, मैचस्टिक मैचस्टिक आग और फिर आपने कंट्रोल में हो, ये सब हमारा के टेस्ट वगैरह होते हैं। ओके, तो वो आके अगर टीली लगाएगा अभी मैच स्टिक, वो जला नहीं पाएगा, वो आपको ज्यादा सीरियस नहीं कर पाएगा, वो आपको मार नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी बेसिक बीमारी को कंट्रोल में रखने का है। अगर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं, को मारने का मौका मिल जाता है। तो मेरा ये मैसेज भी है कि बेसिक बीमारी रखें रखें सिस्टम को बूस्ट करने की की गोली में है, जो भी कर है वगैरह बढ़ाता में, अगर करा तो अगर कुछ वो भी एक बातें हैं, लेकिन ये करने से फायदे वाला, जैसा मैंने कहा, नींबू शब्द पी लिया, ब्रीदिंग, नींद हमने लिया, दिन में 3 बार हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह मापा, उस पर नजर रखा, बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, तो रहे जो उसको काबू में, कंट्रोल में रखा, जो डायबिटीज की मरेंगे या संक्रमित होंगे तो उसका घर पे इलाज हो जाएगा। अब यू डोंट हैव टू टेक देम टू द हॉस्पिटल। करता हूं, देखिए वेंटिलेटर अभी 30,000 वेंटिलेटर कोई डोनेट करता है या हम खरीद के रखते हैं, each as per the norms of the WHO, each ventilator qualified anesthetist, कम से कम 8 घंटे की शिफ्ट वाली हमें 3 जाके हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। है गिविंग एयर टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जिसमें इतनी अंदर बातें हो रही हैं ना, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है, साइटोकाइन स्टॉर्म से पानी के अंदर वगैरह भी हैं और पेशेंट इज डाइंग। एक बात, साथ साथ पेशेंट के शरीर के अंदर शुगर का लेवल भी बढ़ता है, स्पेशली इफ यू आर गिविंग स्टेरॉइड। और वैसे भी कोरोना वायरस जहां जहां हमला करता है उसमें से एक है पैनक्रियास। पैनक्रियास पे हमला करने से इंसुलिन पे असर पड़ता है, होते हैं वो आइलैंड पे हमला करता है, उसका उस हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड घटना है, और शुगर बढ़ने से भी बढ़े चाहिए, आपको चाहिए स्टेटस कम करने के लिए आपको दवाइयां चाहिए, खून पतला करने
करेंगे हो सके होने रिपोर्ट एंड दैट्स इन्फेक्शन है जो कोरोना का नहीं है, तो वो दूसरा इन्फेक्शन कौन है और उसकी एंटीबायोटिक क्या होगी जो हम उस समय आप एक्टिविटी कराएंगे रिपोर्ट यू यूज योर विजडम यू तो इसका समय साहब जानते हैं ठीक है हम जैसे वो एंटीजन वेरी रेयर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेकिन देखिए ये सब बातें उनको भी दी, कोल्सिसिन दिया, उनको मेलेटोनिन भी दिया गया था, उनको रेमडेसिविर भी दिया गया था ऑन डे 3, ये सब बातें हैं हम जानते हैं। और देखिए वो बच के ठीक हो गए, दो ही हैज़ ऑल द कोमॉर्बिडिटी, उनकी उम्र भी थी, उनको मोटापा भी था, बहुत सारी बातें थी जो हम जानते नहीं जानते, देखिए अभी ठीक हो गए। तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो ठीक हो जाएगा तो आपके पिताजी मर जाएंगे? क्यों भाई, क्या कसूर है उसका? नहीं। अब ये संदेशा मुझसे लेके चलिए। अब बात आ गई आपके घर में जो कोरोना घुसता है वो, देखिए सब्जी भाजी हर रोज खरीदना है, आपकी मम्मी या आपकी भाभी या आपकी बहन सब्जी भाजी खरीदने के लिए जाएगी, कोरोना लेके आएगी, तो क्या करेंगे? एक बकेट लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें 20% ब्लीच सोल्यूशन डालिए या पोटेशियम परमैंगनेट, और सब्जी भाजी वाले को बोले इसमें डाल दो, उससे दूर रहो, मास्क पहन के रखिए, बराबर, और 4 घंटा तक उसको अंदर रहने दीजिए। एंड प्लीज कृपा करके, मेहरबानी करके, डू नॉट एक्सेप्ट एनी कैश। ये जो नोट्स है ना, ये कैश है ना, दे आर वेरी नोटोरियस इन ट्रांसमिटिंग ऑल इन्फेक्शन, वेदर इट इज ट्यूबरक्लोसिस, वेदर इट इज कोरोना। सो जहां तक हो सके, हर जगह पे नहीं होता, तो अगर आपने जो कैश दिया वो तो घर में से दिया है, सेफ है, वो आपको कुछ कैश दे रहा है, डोंट एक्सेप्ट इट, या तो उसको बख्शीश कर ले आपने, या आपने इसमें कैमनोफोर डाल के रखा है उसमें डाल दो। अगर नोट खराब हो जाए तो कुछ नहीं, 4 घंटा उसका रहने दो, फिर आप उसको घर में ले जाइए, फिर अच्छे से आरओ प्लांट का पानी उसे धोइए। अमेजोन का आजकल अमेजोन बहुत चल रहा है, दैट्स वन एजेंसी विच कैन ब्रिंग कोरोना टू यू, या तो क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर 24 घंटा तक रहेगा कोरोना, तो आप ये जो कुरियर आया है उसको एक दिन बाहर रखिए, डोंट टच इट। या तो ग्रोसरी वाला कुछ दे के गया है, ग्रोसरी की दुकान से भी आया हुआ माल रोग फैलाता है, ऐसा हमारे वापी में भी हुआ है, सूरत में बहुत जगह हुआ है। सम 82 पेशेंट्स गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस एंड गुड नंबर ऑफ देम डाइड आल्सो। उसका कसूर यही था, ये ग्रोसरी वाला। तो सब ये छोटी छोटी बातें हैं, ग्रोसरी हैं, सब्जी भाजी हैं वगैरह, ग्रोसरी का माल आया है अगर, तो आप उसको लिव इट फॉर अबाउट एन आवर, 1 डे, या तो अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, जो हम स्ट्रीट्स में, जो हम शहरों में स्प्रे करते हैं, कीप दैट इन द हाउस। जैसे आप मच्छर की दवा स्प्रे करते हैं उस तरीके से आप उसका स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर, एंड देन लीव इट फॉर 12 आवर्स एंड देन टेक इट इनसाइड। एक और है वो अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे शरीर में और हमारी कुदरत में जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज में मिलते हैं, सूर्य किरण मिलती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं उसका एक फिक्स डोज हमें चाहिए। वी द ह्यूमन बीइंग नीड ए फिक्स डोज ऑफ यूवी रेज एवरी डे। नाउ दिस इज डिप्राइव्ड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ 10 महीने तक सूर्य प्रकाश, जैसे द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, उसकी वजह से द पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज विच इज रिक्वायर्ड। It is required for even sun rays is required even for synthesis of vitamin D3। और हमने ये भी कहा कि अगर अच्छी सी धूप होगी तो वैसे भी कोरोना उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, मर जाएगा। तो वी नीड सन रेज। सन रेज में क्या? अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज का भी मशीन आते हैं। आपके घर में जो आरओ प्लांट है ना, उसमें जो यूवी ट्यूब लगी हुई है, खैर उसकी वेवलेंथ 257 है, तो 257 वेवलेंथ वी द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट टॉलरेट। अगर उसकी दवा के हिसाब से सपोज आपको कोरोना है और आपके गले में कोरोना के वायरस बैठे हुए, उसको मारना है तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज उसको मारेंगे। अभी उसका एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है।
बट द वेवलेंथ हैज टू बी 220 या 224, उससे ज्यादा नहीं। हमारे पास अभी जो है दैट इज 257, तो दैट वी कैन नॉट यूज। लेकिन दिन रात लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं हल निकलेगा। अल्ट्रावायलेट रेस से स्टेरिलाइज करने के मशीन भी आते हैं, वो बहुत महंगे नहीं हैं, 2-2,500-3,000 का मशीन आते हैं। आप उसमें अपना वैलेट छोड़ दीजिए, अपने चश्मे छोड़ दीजिए, बाहर की ग्रोसरी की कोई चीज़ वो छोड़ दीजिए, गाड़ी की चाबी छोड़ दीजिए, अपना फाउंटेन पेन छोड़ दीजिए, अगर रिंग वगैरह पहना है वो छोड़ दीजिए, एंड स्टेरिलाइज फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट स्टेरिलाइज हो जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक जानकारी होना जरूरी है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन, जैसे मैंने कहा। तो जो चीज़ घर में आती है, जैसे आपके घर में, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है मैं सर जवाब दे सकता हूँ आपको, जैसे आपके घर में हाउस मेड आती है, साफ सफाई करने वाली औरत, बहन या कोई आपका सर्वेंट, तो लोग मुझे पूछते हैं कि साहब उसको आने दें कि नहीं। उसको आने दें तो कैसे आने दें? उसका टेस्ट करा के रखा है, वो तो नेगेटिव है, लेकिन टेस्ट कब करवाया? उसके घर में किसी और को तो कोरोना है नहीं, उसकी हिस्ट्री आप ले लीजिए, उसके इलाके में किसी को कोरोना है नहीं, आपको जानना है। वो आपके घर में जब आता है, ही ब्रिंग्स ए पोटेंशियल थ्रेट। तो उसके कपड़े जो हैं, हम तो क्या करते हैं, पेशेंट जो आता है उसको पहले बाहर सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज कर देते हैं, फिर उसको पूरे बाथरूम में भेज देते हैं, अपने कपड़े उतार के वो स्नान कर लेगा, अपने कपड़े धो लेगा, साबुन से ठीक से धोएगा, अलग से सुखाएगा, और उसको आप 3 लेयर वाला N95 वाला मास्क पहनाएंगे। और जब तक सर्वेंट आपके घर में है, आप सब लोग मास्क पहन के रखेंगे। वो रसोई बना रहा है, झाड़ू निकाल रही है, कपड़े धो रही है, जो वहाँ है उससे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। तो क्योंकि इस तरीके से भी होने से बहुत सारे लोग मरे हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर की वाइफ भी इसमें आ गई हैं, उनकी मौत हो गई है। बात छोटी छोटी हैं, जैसे मैंने कहा, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। और एक बात है, देखिए वो चाइना से निकला है ना, वो कोरोना वायरस, उसकी नज़र आप पे है, हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर है। तो एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है,